Hello everyone. So in this video we will talk about Arrow's theory of social choices. This is an important topic from welfare economics and this is my first video on my channel School of Economics. And before starting this topic, let me first quickly introduce myself. So, my name is Ananya Dikshit and I have qualified NET in Economics and JRF in Commerce, and I have more than a year's teaching experience, and this channel is basically for NET aspirants who are preparing for their NET JRF exams in economics, and this channel is also for students who are pursuing their PG in economics. And in this particular channel we will talk about the various important topics. We'll discuss them in great detail, and this will help you in boosting up your preparation for your exam and giving it a right direction. Okay, now let's start with the topic, which is Arrow's theory of social choices from welfare economics. And now, what is welfare economics? Welfare economics, as you know, is basically a branch of economics which is mostly concerned with the allocation of resources. Like in economics, we know that there are scarce resources, there are fixed resources, and we have to utilize these resources in very efficient manner. We have to allocate these resources in very efficient manner so that maximum welfare could be achieved. Now allocation, when I say allocation of resources, so it is basically devoting resources in producing products for the consumers. Now products are produced on the basis of what is maximum demanded. Like if you talk about a particular individual firms, then the same criteria is being observed, that to produce the product which is mostly demanded in the market. Okay, now when you talk about economy as a whole, so all the sum total of resources have to be allocated or devoted in such a manner so that such products should be produced, such articles should be made which are maximum demanded or which are demanded by the majority in the community, in the society as a whole. Okay, now this Arrow's theory of social choices does the same thing. It has the objective of determining socialized wants. ना व्हाट इज सोशलाइज वॉन्ट्स. सोशलाइज वॉन्ट्स क्या होती है? इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम कहते हैं हमारी इंडिविजुअल वांट क्या है, तो वो हमारे प्रेफरेंसेस से क्लियर हो जाती है. दैट व्हाट वी आर प्रेफरिंग इन द मार्केट, दैट इज़ आर वांट, कि हमको क्या कंज्यूम करना चाहते हैं हम. ओके, एंड जब भी हम उन चीज़ों को कंज्यूम कर पाते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है. ओके, सो सेटिस्फैक्शन मिलना अब वांट्स के फुलफिल हो जाने से उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल पे वेलफेयर हो रहा है या इंडिविजुअल का वेलफेयर हो रहा है. और जब सोशलाइज वांट्स की बात होती है तो हम ग्रुप बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, उस पूरे ग्रुप की क्या वांट्स हैं और उनके सेटिस्फैक्शन से होता है सोशल वेलफेयर अचीव होता है. तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि किस तरह का एलोकेशन रिसोर्सेज का या किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी रिसोर्स एलोकेशन के लिए या किस तरह का इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हमें इकोनॉमी के अंदर मैक्सिमम वेलफेयर ला कर देगा. तो ये बेसिकली वेलफेयर इकोनॉमिक्स मेजर करता है सोशल वेलफेयर को और मेजर करने की कोशिश करता है शुड से, क्योंकि वेलफेयर एक अपने आप में ही सब्जेक्टिव टर्म है और इसको जैसे यूटिलिटी, वेलफेयर, ये सारी सब्जेक्टिव बातें, इनको मेजर करना अपने आप में ही एक इम्पॉसिबल सा टास्क है. तो ये जज करता है, आई शुड से, कि इस वेलफेयर इकोनॉमिक्स जज करती है कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से या किस तरह के इकोनॉमिक पॉलिसी से वेलफेयर बढ़ रहा है इकोनॉमी के अंदर. ये इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक स्टेट या इकोनॉमिक पॉलिसी के किसी भी स्पेसिफिक चेंज को जज करती है कि ये चेंज डिज़ायरेबल है, क्या ये चेंज एफिशिएंसी ला रहा है या नहीं. सो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, जैसे पैरेटो ऑप्टिमैलिटी या पैरेटो एफिशिएंसी क्राइटेरिया है, जिसका सेपरेट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल में. देन कैल्डर हिक्स का क्राइटेरिया है जिसे हम कंपनसेशन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं. एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ सोशल वेलफेयर फंक्शन विच वाज डेवलप्ड बाय बर्जेनसन एंड सैमुएल्सन.
और उसके बाद आता है आपका केनेथ एरो का, जो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं, केनेथ एरो की थ्योरी ऑफ सोशल चॉइसेस। और इस थ्योरी में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे दैट जब सोसाइटी की वांट्स का पता लगाना होता है, ग्रुप की वांट्स का पता लगाना होता है, तो चॉइसेस के थ्रू पता लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इंडिविजुअल लेवल पे वो इजी है, बट सब ग्रुप में बात करी जाए तो उनकी चॉइसेस का के थ्रू पता लगाना दैट क्या प्रेफरेंसेस हैं सोसाइटी के, ताकि रिसोर्सेज को डिवोट किया जा सके उन प्रेफरेंसेस को बनाने के लिए, उन मेजॉरिटी प्रेफरेंसेस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सोसाइटी के सोशल चॉइसेस की हेल्प से या वोटिंग सिस्टम की हेल्प से, आई शुड से सिलेक्शन की हेल्प से, कि लोगों को प्रेफरेंसेस दिए जाएं, उनको बोला जाए कि आपके पास इतने ऑप्शन हैं, आप सेलेक्ट करो और मेजॉरिटी जिसको सेलेक्ट कर रही हो उसी प्रोडक्ट को बनाया जाए। ये चीज़ सोशल लेवल पे डिफ़िकल्ट होती है, ये चीज़ काफ़ी इम्पॉसिबल होती है। ये एरो ने आर्ग्यू किया था अपने इस थ्योरम में, जिसको हम एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। उनका ये मॉन्यूमेंटल वर्क है, सोशल चॉइसेस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज़। इसमें ये इनकी थ्योरी आई थी 1951 में। नाउ इसमें एरो कहते हैं कि सोशल वेलफेयर फंक्शन को बनाना या फिर सोशल ऑर्डरिंग करना इम्पॉसिबल होता है एक फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी जहाँ पे लोग फ्री हों अपने चॉइसेस को लेने के लिए, कोई डिक्टेटरशिप ना हो, सबको फ्रीनेस हो कि क्या किसको क्या सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ ऐसी सोसाइटी में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ सोशल वेलफेयर फंक्शन। नाउ व्हाट इज़ अ सोशल वेलफेयर फंक्शन? सी इंडिविजुअल लेवल पे जैसे कि हम पढ़ते हैं, एक कंसेप्ट आता है आपका इंडिविजुअल लेवल पे, हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं। आई होप आप लोग ने सुना है सब इसके बारे में। सो जो हम इंडिफरेंस कर्व का एक सेट पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप, जिसमें कई सारे इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किए जाते हैं। ओके, सो इंडिफरेंस मैप क्या दिखाता है? बेसिकली हमें चॉइस स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस दिखाता है। बेसिकली इसमें जो नीचे इंडिफरेंस कर्व होता है वो कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाता है, एक उसके ऊपर वाला जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाता है, और उसके भी ऊपर वाला और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के, दो गुड्स के बीच में ये बनाया जाता है। और एक पर्टिकुलर अगर इंडिफरेंस कर्व की बात करें, जैसे I1 की अगर बात करें, तो उस पर जितने भी एक्स और वाई गुड्स के बीच में जो भी जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वो सारे एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखा रहे हैं। लेकिन एक हायर इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा प्रेफरेबल होगा क्योंकि वो ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखा रहा है। अब सोशल वेलफेयर फंक्शन भी इसी तरह का है। सोशल वेलफेयर फंक्शन भी इससे सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है। एक सोशल इंडिफरेंस कर्व से आप इसको समझ सकते हैं कि सोशल इंडिफरेंस कर्व ये होता है जिसमें हम कई सारे वेलफेयर कर्व्स बनाते हैं। ये आपके आई कर्व्स हैं, इसमें हम W या वेलफेयर कर्व्स बनाते हैं, जिसमें एक हायर वाला जो वेलफेयर कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ वेलफेयर को दिखाता है। ओके, तो ये एक सोशल ऑर्डरिंग को रिप्रेजेंट करता है। सोशल वेलफेयर फंक्शन सोशल ऑर्डरिंग या सोशल प्रेफरेंसेस को दिखाता है, सोशल स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, कि एक सोसाइटी एज अ होल में क्या लोगों की प्रेफरेंसेस हैं। और जब हमें इसका आइडिया लग पाएगा तभी हम रिसोर्सेज को डिवोट कर पाएंगे कि क्या मैक्सिमम नीडेड है इकोनॉमी में, राइट। तो इस सोशल वेलफेयर फंक्शन से रिसोर्सेज का एलोकेशन ऑप्टिमम तरीके से हो पाएगा। नाउ बर्जनसन एंड सैमुएल्सन ने जो पहले क्राइटेरिया दिया था जिसमें इन्होंने ये सोशल वेलफेयर का फंक्शन का बनाया, इसमें उन्होंने वैल्यू जजमेंट्स का यूज़ करके इसको ईजिली ड्रॉ कर लिया था। वैल्यू जजमेंट्स का क्या मतलब है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं फिलॉसफी में, फैक्चुअल जजमेंट्स एंड वैल्यू जजमेंट्स। फैक्चुअल जजमेंट्स का क्या मतलब हुआ? दैट इज सिंपली ऑब्जेक्टिव तरीके से हम ये कह रहे हैं कि द पर्सन ए हैज़ अ हाइट ऑफ 5 feet 10 inches। ओके, सो दैट इज़ योर फैक्चुअल जजमेंट। अब हम ये बोलें अगर यहाँ पे दैट दिस पर्सन इज़ हैविंग वेरी, जब हम बात करते हैं वैल्यू जजमेंट्स की, कि दिस पर्सन इज़ वेरी
टॉल इतना ज़्यादा है ये पर्सन कि जितना नीडेड भी नहीं है। तो ये मतलब हो गया, इसका हो गया ये मतलब है कि ये वैल्यू जजमेंट्स है, कि मतलब ये चीज़ सबके लिए अलग अलग हो सकती है। 5'10" की हाइट तो सबके लिए एक है, सब अगर वो 5'10" है तो हर इंडिविजुअल उसको 5'10" की हाइट का ही बोलेगा। बट किसी के लिए टॉल वो हो सकता है, किसी के लिए वो शॉर्ट हाइटेड भी हो सकता है, किसी के लिए मीडियम हाइटेड भी हो सकता है। तो ये सबकी वैल्यूज़ और सबकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग होता है। सो इसे हम बोलते हैं वैल्यू जजमेंट्स। तो इनका यूज़ करके ऑल्दो पैरेटो और हिग्स अपोज करते थे, पैरेटो और हिग्स के जो क्राइटेरिया है उसमें बहुत अपोज किया गया है वैल्यू जजमेंट्स का, कि वैल्यू जजमेंट से चीज़ें सब्जेक्टिव हो जाती हैं और इसका यूज़ करके हमें क्राइटेरिया को जज नहीं करना चाहिए, या वेलफेयर क्राइटेरिया या इकोनॉमिक पॉलिसी को जज नहीं करना चाहिए। बट बर्जनसन एंड सैमुअल्सन ने कहा कि कोई भी ऐसा क्राइटेरिया जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो उसको बिना वैल्यू जजमेंट्स के नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उन्होंने वैल्यू जजमेंट्स का एक्सप्लिसिटली यूज़ किया और उसके थ्रू उन्होंने सोशल वेलफेयर फंक्शन बनाया, जिस सोशल वेलफेयर फंक्शन का मतलब है कि उन्होंने सोसाइटी के प्रेफरेंसेस को जानने की कोशिश करी और इंडिविजुअल लेवल पे जानकर उन्हें सम अप करके सोसाइटी के प्रेफरेंसेस या ऑर्डरिंग को जानने की कोशिश करी, राइट। तो यहाँ पे जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो बर्जनसन एंड सैमुअल्सन के बाद आया। एरो का कहना था कि आपने ये तो कह दिया दैट वैल्यू जजमेंट्स का यूज़ करके सोशल वेलफेयर फंक्शन से हमें सोसाइटी के प्रेफरेंसेस का पता चल जाएगा, बट ये वैल्यू जजमेंट्स आए कहाँ से, इसको ये टैकल करते हैं केनेथ एरो की वैल्यू जजमेंट्स मतलब कि सोसाइटी के चॉइसेस का पता लगाना, कि सोसाइटी को क्या चाहिए, इसका पता कैसे लगाया है आपने, किस तरह से इसका पता लगाया जा सकता है कि सोसाइटी के प्रेफरेंसेस जो हैं या सोसाइटी की चॉइसेस जो हैं इसको कैसे पता लगाया है ताकि हम वेलफेयर फंक्शन बना सकें। यहाँ पे वो कहते हैं कि सोसाइटी के प्रेफरेंसेस या चॉइसेस की हेल्प से प्रेफरेंसेस को जानना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं जो सोशल चॉइस को सेटिस्फाई करने चाहिए, या सोशल चॉइस जब हम करवा रहे हैं तो वो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। देखिए ये कंडीशंस क्या हैं, ये कंडीशंस फुलफ़िल होना ज़रूरी है और ये कंडीशंस बेसिकली ये बताती हैं कि अगर हम इस तरह का क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं कि लोगों को कई सारे ऑप्शंस दे दिए और उनको चॉइस करने को दे दिया कि आप क्या प्रेफर कर रहे हो, और फिर मेजॉरिटी ने जो प्रेफर किया उसमें रिसोर्सेज को डिवोट कर दिया, तो ऐसी चॉइसेस करवाते वक्त कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। और जब ये कंडीशन सब सेटिस्फाई करवानी होगी तब वो कहते हैं कि फाइनल डिसीजन नहीं निकल कर आ पाएगा। वो हम अब इस वीडियो में देखेंगे। पहली कंडीशन है ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब होता है? ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंसी का बेसिकली मतलब है दैट इफ़ सपोज एक प्रोडक्ट ए है विच इज़ प्रेफर्ड टू प्रोडक्ट बी, या प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी से बेटर है किसी इंडिविजुअल के लिए एंड बी बेटर है सी से, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट ए इज़ प्रिफर्ड ओवर सी। मतलब सी ए से बेटर नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी से बेटर है, बी सी से बेटर है, तो ए सी से बेटर ही होगा, सी ए से बेटर नहीं हो सकता है। ट्रांजिटिविटी का अजम्पशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, जिस तरह से इंडिफरेंस कर्व में भी अजम्पशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है। कंसिस्टेंसी का व्हाट डज़ दैट मीन्स? कंसिस्टेंसी मीन्स कि आपकी चॉइसेस कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ए को बी के ऊपर रख रहे हैं या ए को बी से ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो हर टाइम पीरियड पे आपको ए को बी से ज़्यादा ही प्रेफर करना होगा। यू कैन नॉट प्रेफर बी टू ए एट सम अदर टाइम पीरियड। ओके, सो चॉइसेस कैसी होनी चाहिए? ट्रांजिटिविटी होनी चाहिए चॉइसेस में और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है? रेस्पॉन्सिवनेस टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। Now what does that means? See, हम सोशल वेलफेयर फंक्शन बना रहे हैं और सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या है? सोसाइटी का वेलफेयर फंक्शन है, और सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, और इंडिविजुअल्स के प्रेफरेंसेस की का पता लगा के हम सोशल वेलफेयर फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। ना इंडिविजुअल के प्रेफरेंसेस को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए सोशल वेलफेयर फंक्शन की। अगर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं तो सोशल वेलफेयर फंक्शन में चेंज आना चाहिए। इट शुड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। ऐसा हमें सोशल वेलफेयर फंक्शन क्रिएट करना होगा ताकि ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट होकर आ सके। कंडीशन ऑफ नॉन इम्पोजिशन। नाउ व्हाट डज दैट मीन्स? नॉन इम्पोजिशन का अगेन ये मतलब है दैट नॉन इम्पोजिशन का मतलब है दैट
कोई और या कहीं बाहर से, सोसाइटी के बाहर से कोई थर्ड पार्टी किसी की चॉइसेस को डिक्लेयर ना कर रही हो। जो चॉइसेस निकल के आ रही हूँ वो इंडिविजुअल्स के थ्रू निकल के आ रही हूँ, उनकी फ्री चॉइसेस होनी चाहिए वो, ओके, इम्पोज ना हो रही हो किसी और की चॉइसेस किसी और के ऊपर, ओके। नाउ फोर्थ कंडीशन जो सेटिस्फाई करने के लिए एरो कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ नॉन डिक्टेटरशिप। नाउ व्हाट इज कंडीशन ऑफ नॉन डिक्टेटरशिप? सो ये थर्ड से काफ़ी सिमिलर है। नॉन डिक्टेटरशिप का मतलब है कि कोई डिक्टेटर इन्वॉल्व ना हो। अगर हम सोसाइटी में सारे इंडिविजुअल्स की को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उन इंडिविजुअल्स को मौका मिलना चाहिए कि वो क्या प्रेफर करना चाहते हैं, कि ऐसा ना हो कि एक डिक्टेटर हो जो सोसाइटी के बिहाफ पे डिसीजन ले रहा हो, क्योंकि उस सिचुएशन में तो आसान हो जाएगा सोसाइटी के प्रेफरेंसेस को जानना, क्योंकि एक इंडिविजुअल ने सबके लिए डिसीजन ले दिया और वही प्रोडक्ट बनाने के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया गया, सो दैट इज़ ईजी। बट हमें ग्रुप बिहेवियर की तरह से चल रहा है और यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ इररिलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स फिफ्थ कंडीशन है ना। व्हाट डज दैट मीन? सी, इररिलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स का मतलब है कि कोई इररिलेवेंट ऑल्टरनेटिव से हमारा पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव अफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर ए बी से प्रेफर्ड है एंड बी सी से प्रेफर्ड है और सपोज़ कि सी ऑल्टरनेटिव अब रह ही नहीं गया है या सी वाला ऑप्शन चला गया है, तो उसकी वजह से ए जो बी से प्रेफर्ड था वो चीज़ अफेक्ट ना हो। मतलब ऐसा ना हो जाए कि कहीं अब बी ए से प्रेफर हो जाए। अगर ए बी से प्रेफर्ड था तो वो वैसा ही रहे, किसी और ऑल्टरनेटिव में चेंज या किसी इररिलेवेंट ऑल्टरनेटिव में चेंज आने से इस पर्टिकुलर ए बी में कोई चेंज ना आए, ये ए ओवर बी ही रहे, ओके। सो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए जब सोशल चॉइसेस का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है टू नो अबाउट सोशल प्रेफरेंसेस, वहाँ पे चॉइसेस या वोटिंग करवा के जब इसको किया जाता है तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। No valid social choice can be made by majority rule, that is voting fails. Now यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है कि इंडिविजुअल के प्रेफरेंसेस की हेल्प से या इंडिविजुअल्स को मौका देकर कि वो चॉइसेस करें अपनी, और उसकी हेल्प से सोशल प्रेफरेंस को कंस्ट्रक्ट करें कि इंडिविजुअल्स की चॉइसेस लेकर मेजॉरिटी बनाकर सोशल प्रेफरेंस या सोशल ऑर्डरिंग क्रिएट करें ताकि सोशल वेलफेयर फंक्शन बनाया जा सके, वो चीज़ इम्पॉसिबल है। और ये क्यों इम्पॉसिबल है हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ सकते हैं। सपोज़ एक इकॉनमी है और वहाँ पे 3 ही इंडिविजुअल्स हैं, ए बी सी, एंड जो तीनों इंडिविजुअल्स हैं उनके पास 3 ऑप्शन हैं, एक्स वाई जेड। ये सोशल स्टेट्स हैं बेसिकली, कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को दिखाती हैं कि या तो एक पॉलिसी एक्स फॉलो हो सकती है, क्योंकि वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली पॉलिसीज़ को जज करते हैं या सोशल इकोनॉमिक स्टेट्स को जज करते हैं, तो एक्स पॉलिसी फॉलो करी जा सकती है इकोनॉमी में। सो पॉलिसी बेसिकली रिलेटेड किस चीज़ से होती है कि अगर एक्स पॉलिसी है तो एक्स पॉलिसी किसी और तरह का रिसोर्स एलोकेशन बताएगी कि किस गुड में ज़्यादा रिसोर्स देने चाहिए, किस गुड में कम रिसोर्स देने चाहिए। जैसे एक्स पॉलिसी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिसोर्सेज को बता रही होगी इंस्टेड ऑफ कंजम्पशन। फिर वाई पॉलिसी का एक ऑप्शन है, जेड पॉलिसी का एक ऑप्शन है, और लोगों को चॉइसेस दी गई, फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी में चॉइसेस दी गई कि आप लोग इन्हें रैंकिंग दो। फाइन, तो यहाँ पे ए इंडिविजुअल ने 3 रैंकिंग एक्स को दी है एंड 2 वाई को, सो दैट इज ए इंडिविजुअल के लिए आप देखोगे 3 एक्स इज मोर प्रेफर्ड टू वाई, एंड इंडिविजुअल ए के लिए ही वाई इज मोर प्रेफर्ड टू जेड, ओके। नाउ बी के लिए आप देखोगे कि बी इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे उसके लिए y इज़ मोर प्रेफर्ड टू z, जो कि a में भी था, एंड z जिसका 2 है, 2 रैंकिंग है, z इज़ मोर प्रेफर्ड टू x फॉर इंडिविजुअल b, क्योंकि x को सिर्फ 1 वोट उसने दिया है, राइट। c इंडिविजुअल के लिए आप देखोगे कि z इज़ मोर प्रेफर्ड टू z इज़ मोर प्रेफर्ड टू x, जो कि बी इंडिविजुअल में भी था, एंड एक्स इज़ मोर प्रेफर टू वाई। सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, अगर आप क्लियर टर्म्स में बात करो तो ए इंडिविजुअल जो आपके पास था उसने एक्स को वाई के ऊपर रखा है एंड वाई को जेड के ऊपर रखा है। जो बी इंडिविजुअल था उसने वाई को जेड के ऊपर रख दिया है एंड जेड को ए के ऊपर उसने
वैल्यू उसकी प्लेस करिए x के ऊपर, ओके। एंड C इंडिविजुअल ने z को x के ऊपर रखा है, ओके, जो B इंडिविजुअल ने भी किया था। एंड C इंडिविजुअल ने आपका जो y है, एक सेकेंड, A इंडिविजुअल जो है, B इंडिविजुअल जो है एंड C इंडिविजुअल जो है, A ने आपका x को y के ऊपर रखा है एंड y को z के ऊपर रखा है, राइट। एंड सेकेंड B इंडिविजुअल ने y को z के ऊपर तो रखा ही है एंड z को x के ऊपर रख दिया है, फाइन। एंड C इंडिविजुअल ने क्या किया है कि z को x के ऊपर रखा है एंड क्या किया है उसने, एंड साथ में उसने किया है कि z को x के ऊपर रखा है एंड x को y के ऊपर रखा है। सो एक बार हम फिर से यहाँ पे बना लेते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है, ओके। एंड B ने y को z के ऊपर रख दिया है एंड z को x के ऊपर रख दिया है एंड यहाँ पे भी z को x के ऊपर रखा गया है, साथ में y को x को y के ऊपर रखा गया। अब आप देखोगे कि x को y के ऊपर रखने के लिए दो इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे भी x y के ऊपर है, यहाँ पे भी x y के ऊपर है, ठीक है। तो दो इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। y को z के ऊपर रखने में भी फिर अगेन a है और b भी है, दो इंडिविजुअल्स हैं। z को x के ऊपर रखने वाले भी दो इंडिविजुअल्स हैं, एक हो गया b एंड एक हो गया c। सो दैट मीन्स यहाँ पे x को y के ऊपर रखने भी मेजॉरिटी से आ रहा है। आउट ऑफ 3 2 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो x को y के ऊपर रख रहे हैं। y को z के ऊपर रखना ये भी मेजॉरिटी से आ रहा है, दो इंडिविजुअल्स अगेन हैं आउट ऑफ 3, और z को x के ऊपर रखना ये भी मेजॉरिटी से आ रहा है। तो फाइनल मेजॉरिटी क्या निकली, फाइनल कौन सा इकोनॉमिक पॉलिसीज या इकोनॉमिक स्टेट प्रेफर किया गया, ये यहाँ पे पता नहीं लग पाएगा। सो दिस इज़ एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कि हम सोशल चॉइसेस या रैंकिंग या वोटिंग का यूज़ करके सोशल चॉइसेस का पता लगा सकें थ्रू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, ये इम्पॉसिबल है। जिससे सोशल वेलफेयर फंक्शन क्रिएट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जो कि बर्जन्स एंड सैमुअल्सन कर रहे हैं। वो सोशल वेलफेयर का फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, बट ये कहते हैं कि सोशल वेलफेयर फंक्शन क्रिएट करना ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। और ये कहते हैं कि ये पाँचों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए सोशल वेलफेयर फंक्शन निकालना इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस की हेल्प से इम्पॉसिबल है। अगर हम पॉसिबिलिटीज़ में लाना चाहते हैं तो कंडीशन जो है कोई ना कोई सेटिस्फाई वाला चीज़ नहीं हो पाएगी, कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगी या कोई ना कोई कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। सो दिस इज़ एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। Okay, thank you everyone. If you like the video, please give it a thumbs up and share and subscribe the channel.